Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Manipur, Shri La Ganeshan, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh, Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Honorable Union Minister of State, Dr. R.K. Ranjan Singh, Honorable Cabinet colleagues, Honorable Members of Parliament, Honorable MLAs, senior officials, dignitaries, distinguished guests, and the invitees, friends from media, ladies and gentlemen. It is my privilege to deliver the welcome address on this auspicious occasion. Today's program for laying of foundation stones and the dedication of various developmental projects in Manipur will further strengthen the developmental momentum in the state. The project will address long-felt needs across many sectors such as education, health, agriculture, road infrastructure, information technology, water resources, and tourism, amongst others. We are therefore extremely grateful to the Honorable Prime Minister for taking time out of his busy schedule to be here among us today for this very significant event. On behalf of the State Government of Manipur, it is my pleasure and a proud privilege to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to Manipur. We are thankful to the Honorable Prime Minister for his vision and a continued support for the development of the Northeast region and the welfare of its people. On today's auspicious occasion, it is also my pleasure to welcome Honorable Governor of Manipur, Shri La Ganeshan ji. I also welcome our Honorable Chief Minister, Shri N. Biren Singh. I also welcome Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education, Dr. Rajkumar Ranjan Singh. I welcome all my cabinet colleagues. It is also my pleasure to welcome Honorable MP Maharaja Sanajawa Lesemba, Honorable MP Rajya Sabha Srimati MC Mary Kom, and the Honorable MP Lok Sabha Dr. Lorho. I also welcome all the Honorable MLAs, public leaders, dignitaries, invitees, and the functionaries of various political parties who are present here today. It is also my honor to welcome all the well-wishers who are gathered and present here today. Before I conclude, I would like to once again extend a very warm welcome to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We all are indeed very grateful to you for being here today. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Mathang asina ikai khumnajariba Mukhya Mantri Sri Nongthombam Biren Singh na khwai taragi mafamda thauram asigi mapung oiba warol thambigani. Ai mayam punok po ay nolong na kurumjari ngasi nungairaba numit asida aikhoigi Bharat ki adugumlaba legendary aina the living legend and sinajaba Adugumba Bharat ke Pradhan Mantri Adaraniya Shri Narendra Modi ji,
हम आपको प्रार्थना करता हूं, सलाम करता हूं सर। माना ngasi लेंबी रक्तना मणिपुर ही मंगा फाइनेंस सिदे कोई पाइखत चरक थबक थौरम कया जत्रा हुनबीबा अमदी इनोग्रेट तौबीबा सिगी लाक्पीरीबा सिदैदा दाइज लेंशन बीरीबा Honorable Prime Minister Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi aduga Manipur gi adugumba Honorable Governor Shri La Ganeshan ji aduga ikai khumnajaraba Union Minister Shri Bhupendra Yadav ji aduga State chigi Deputy Chief Minister Shri Y. Joy Kumar aduga ikai khumnajaraba Union Minister of State of External Affairs and Education aigi oja R.K. Ranjan Singh aduga ikai khumnajaraba aikhoi gi Ningthau Maharaj Laisem Masana Jauba aduga aikhoi gi Sant aikhoi gi Star Isan Nupi Honorable MP Rajya Sabha MC Mary Kom aduga aigi colleague Minister Singh aduga Mangdaleng Biriba Honorable MLA Singh aduga Bharatiya Janata Party ki President Party ki Senior Leader Singh Government ki Official Singh aduga Arapa Madhya Nakpadagi Lakpiriba Manipur ki Praja Miyam Punamak ai Mayambu Taramna Oksa Bagaloinana Hanna Kurumjari Amadi Media Mayam Delhi dagi amadi atopa topa station dagi lakpiraga function asibu coverage to bibagi damakta aigi maigi dagi thagachaba amadi harauba phangtokchari ngasi foundation stone tawgadori basi project mapanni operation na doini punna project kungani thoini sigumba punna crore lising mariga sanipan taramanga din khraba matam sida sau khraba bharat sige lengak sasan aruba tangka kaya thadok piramaga ngasi aikhoi gi iram dam sida lengbi raktana aikhoi manipur gi miyang gi marakta saruk yabirariba aduguma Honorable Prime Minister gi matangda wan amani da maduda mayamna aigi laujari budugi matungina dum kumbirakne mahak na Prime Minister oirakpadagi matam amada Bharat ka samnada badung leramba khallamba alliance leramba punamakto ngasidi Minister oirakpa matungdadi aikhoigi notice hai Bharat ki apunba saktam amat oi na sakhat thorangi thabak kaya paikhat pirakleba particularly miyam mang dauna phangaru idna khallaga leramba adugumba inner line permit pibirakhiba adugumba British ke mayokta lantheng nabda thawai thakraba Maharaj Kulusandra madi mioi kulumroi Andaman Nicobar da loi thaki basingdo ai khoina mado ngasi Bharat Sarkar gi adungba Prime Minister Narendra Modi ji gi makhada Amit Shah ji na salaga madad lei kallakanda adugma Mount Herent na leramba podo Mount thokiba sugumba Bharat ki lusingba singse masigi damakta is slogan laugjarke mayam phajana hogallaga khumbiyo ai khoi Manipur gi damakta hogatpiyo ngairaba Pitribigi miyamna leader khanbada khwaidagi top oiraba 70% support leraba adugumba Prime Minister Narendra Modi ji na Prime Minister Narendra Modi ji na Bharat Imana Manipur Imana
Manipur Imana, Manipur Imana. Thank you. I koi ki thamoi dagi fil tauram report mayam ado ngasi Honorable Prime Minister ki mamang da koi na mayam ki cooperation log jabani ngasi phawbada sahi humbudra ka manga bharat na ningkha tamakpada Manipur ki landlock oraba lifeline oraba Imphal Ziri lambi da RCC की योट की ठोंग अम्मा बाबूक सारम दबे से ngasi di Prime Minister Narendra Modi जी की मखादा ठोंग अहुम ngasi ठोंग अनि संगा का दोरी ने ngasi अनि सब ठोंग ngasi संगा का दोरी ने मसीद नते मणिपुर की लाइर बसिंगी हुजिंग आतंग सिदे इंटरेक्शन टोना बदा ममित की मपी ताना Prime Minister Modi जी आपकी आयुष्मान भारत ने मेरा जिंदगी बचाया आईगी किडनी लौथोक खिबगी आईगी हार्ट लायंग बिबगी मधुगी ममित की मपी ताना तंबजिंग दो जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ताकिबने सुगुम्बा आयुष्मान भारत कार्ड करम्बा पृथ्वी की लीडर करम्बा भारत की लीडर मन हौदो कांदा लुपा लाख मंगा के फ्री द लेटर लायर मयाम से लायंग न कना न पीखरगे करम्बा लीडर मन ngasi भारत पीखरगे बा करम्बा भारत की लीडर मन हंतक यंगो था तरा के निपान कोविड की लाइना की नारब वारब मतम मपान थोंगब यादब मतम द था तरा के निपान ने मिओई लाख यादनो चेंग किजी मंगा फ्री द पीरगे यंथोरे जी मसी की दमता कोई मा अखोय करी की दमता थागलोय करी की दमता थागलोय वैक्सीन कोविड 19 की अदुगम लाइना लाख मतम द हा का लाउनद्र पृथ्वी द अमेरिका द यूरोप द मी तोरा तोदना सिनरप मतम द भारत ना पृथ्वी के मपान की वैक्सीन लौबदी लायरना भारत वैक्सीन अनि पुथोखरि दो श्री नरेंद्र मोदी जी की मखादनी वैक्सीन अनि पुथोग भारत की प्रजा खत नते पृथ्वी की लेबाक चामद मटेंग पांगा कंदा अदुग मयाम मदुसु कनख्रिबनि नॉट ओनली भारत की मियोय करोड़ चामगा कुंथ्रा मंगा लेबसि खतिक नतना पृथ्वी की लेबाक चामद अदुग महिदा का तो पीर कांदा ngasi पृथ्वी की मयाम की महाक्सि मधुगी मयाम दुगी कन्ननबगी सोरना थारप मी दंना पृथ्वी की मयाम लौनर इने अखोई की हाईवे सिंग कदी ओरमी मणिपुर की लैंडलॉक नि इसिंग लंबी सु लेते फ्लाइट की खुदोंग साबसु लेते अदुब अखोई की नेशनल हाईवे सिंग कदी फिबम ओरमी हुजि इम्फाल मोरे लंबी मयाम उबिरमनी इम्फाल माउ लंबी उबिरमनी इम्फाल मिजोराम ताबा चोरचानपुर लंबी उबिरमनी इम्फाल जिरी लंबी सिदनते उखरुल दा माउ दा चोरचानपुर की एरिया दा सांजिल की एरिया दा सेंपल लिबा हाईवे मयाम घर घर जल युमथोंग खुदिंग इसिंग बितक तब याद है हमारा सरकार आने के टाइम पे 2017 में सर सिर्फ घर घर जल में मणिपुर में 5.7% था अब आने के बाद में 4.5 साल में अभी पूरा 60% घर घर में जल भी दे रहे सर 60%. We are targeting to complete it 10% within March sir. आज आप इनोग्रेट करेंगे दो बड़ा वाटर सप्लाई स्कीम, एक चिंखई सिंह, एक सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ये लगाने के बाद में सर वी कैन रीच अप टू 70% सर. तो आपका जो ड्रीम है सबको अच्छे घर देना, सबको अच्छे पानी देना, सबको हेल्थ देना, अच्छा हेल्थ देना, सब आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मणिपुर में सब एटलीस्ट 60-70% पहुंच रहे सर. अदुना नरेंद्र मोदी जी माना अखोई मणिपुर बु कयामुक याम नुंसिगे हैना बसे आईगी ओइबा आइना उजबदा आलमन मयामसु याविरी हंदकी काशीदा मां गंगा की स्नान तौब मतमदा पूजा तौब मतमदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मागी खुजाई जो पायरगा सुमाइने इसिंग लुप्पदो मागी फिजिकल फिटनेस मतमदो दमा अतई सिदेबा कोई मणिपुर की हुजिक सिरिबा सिगी लेंग्यान जे सिरगा मा गंगा मा दमा लुप्पे कयामु याम नमाना इखोई ऑल द टाइम कोविड की वारबा मतम कोविड की सांगब मयाम न हाका लाउनरो मतम दुदा
mai da mana madu khumma kanda akhoi gi phi lengan phi du khumma kanda covid ki mayam da piba magi basan magi appeal aduna akhoi hujik phawbada go to hills mission go to village mission da जो भी आपका जो स्कीम्स है उज्ज्वला का हो और आयुष्मान भारत का हो जो भी है हम लोग उसी को घर घर ले जाके डोर स्टेप डिलीवरी करने का हमने प्रोग्राम किया सर अखोइना हुजिक फाउबदा उज्ज्वला स्कीम की मखादा मियोई लाख मरीगा लिसिंग 19 मखादा कोई गैस कनो अखोइगी उज्ज्वला स्कीम की मखादा कोई द एलईडी बल्ब यंथोखरे अदगी स्ट्रीट वेंडर सिंगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्कीम मखादा लाइरब सिंग ऑनरेबल कनो सिंग द लाइरब सिंग द कोई पीबगी दो लिसिंग मापन ग तरुक कोई ची थीरगा उखरुल दगी सेनापति दगी चोरचानपुर दगी सिगी मयाम से अखोइना तौदुना लेट लाइर मयाम पुनमक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा लाइरब लेहन बदा युम सागब कयानो युम रूरल की अमदि अर्बन की मसीद युम कया सागेदना हुजिक इंटरव्यू लोब कांदा अखोई हाना नोंग मरक्त लेरमबदो अखोई हुजिक युम साजरे इसा मरीगा अखोई युम नुंगाइना लेरे गैस फंगबदगी मैखू मरक्त संथीना मैखू मै थारग मैखू मरक्त लेरमबदो ngасidi उज्ज्वला स्कीम दगी अखोई गैस फंगजर कांदा गैस ना साक थोंगे ममितगी मपीताना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दतमे अदुना अखोई मिगी तविमल कावबो यादे भारत लेरिबा सेंटर द लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट अदुगा बीजेपी गवर्नमेंट के लुसिंगबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा मणिपुर पाखलाइबा स्कीम सेमइबा सेंकत सागलाइबा लेटर लाइरगी तौरइबा स्टार्टअप की स्कीम स्टैंड अप की स्कीम तौरइबा पुनमक्से मणिपुर बु नुंगसिबा अखोई मणिपुर की प्रजा मयामबु मसागी मसादौना मसागी इमुंगदौना खनबदगी तौबिरकपनि अदुना मसिगी तौबिमल खांगबो ओइना अखोई लाकदौरिबा 2022 की इलेक्शन ददी अखोई मपुंग फाबा मेजॉरिटी तौरकांदा श्री नरेंद्र मोदी जी बु पपांगल कलहनबा अखोई बीजेपी लेड गवर्नमेंट अमा मुक पीसी हाइबसे मयाम दगी वासक लौजरगा आई मयाम बु हन्ना थागसरी अमदि खुरुमजरी जय हिंद इकाई खुमनाजरीबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बु हन्ना थागत फोंदोकजरी मथंग असिना बीजेपी सरकार न मणिपुर दा शासन पाइरकपा चही मरी था निपाल असिगी मनुंगदा मणिपुर प्रजागी नुंगाई याइफनबगीदमक लौखलकपा अखनबा थबक थौरम सिंह अदुगी समलप्पा पाउदम उतलिबा वीडियो असि मयाम पुनमु मिदेंग तामिनसी जाती है शासन कैसे चलाया जाता है विकास की योजनाओं पर कैसे కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885551 9100885551. काम होता है. स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के अगर कार्य करती है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है. इन सभी प्रश्नों का उत्तर मणिपुर की भव्य तस्वीर देख करके हर किसी को मिल जाता है. The growth story of India shall never be complete until the northeastern states progress at par with the rest of the country. Northeast is becoming the new engine of India's growth under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
Today, the state of Manipur is truly reaping the benefits of the double-engine government, from bringing transparency in governance to maintaining law and order to boosting infrastructural development. The state government is writing a new chapter in the transformational story of Manipur. Manipur is moving ahead with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and becoming self-reliant in every sector. The state has created a record 1 lakh jobs through the MSME sector. 5,477 startups have been benefited under Startup India with a cost of rupees 114.56 crore. The inner line permit is the biggest gift of the Modi government for the people of Manipur. The central government renamed Mount Harriet as Mount Manipur. The government is setting up the Rani Gaidinliu Tribal Freedom Fighters Museum in Tamenglong district to celebrate the unsung heroes. To recognize the role of Manipuri women in economic development, the government has inaugurated 7 Ima markets in hill districts that are fully functional. The central government envisions transformation through transportation in Manipur. The government has been focusing on connectivity and has revived 2 lifelines, Barak Bridge and Maku Bridge in the state. One of the highest bridges in the world, having a pier height of 141 meters, is being built on the Jiribam-Imphal new railway line project. Initiatives of central government schemes such as Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Jal Jeevan Mission, Ujjala Yojana, PM Kisan Samman Nidhi Yojana are emerging as a boon for the people of Manipur. More than 8 lakh beneficiaries have been enrolled for free cashless treatment under the Ayushman Bharat and Chief Minister Gi Hakselgi Tengbang schemes. Churachandpur Medical College is under construction, which is the first medical college in the hill districts of Manipur. Manipur is India's sports powerhouse. The players of the state have brought laurels for the country. Go to Hills and Go to Village missions have ensured doorstep delivery of government services. In the wake of the COVID-19 pandemic, Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana is fulfilling the food requirement of the needy by providing food grains through PDS. A subsidized ration has been provided to 24.3 lakh people under the National Food Security Mission. PSA oxygen plants have been sanctioned for the state through PM Cares for each of the 16 districts. In a short span of time, Manipur has demonstrated path-breaking models of development and good governance. Mathang asina Manipur miyamgi chawkhat thaurangi damak ngasi kaikhumnajariba Pradhan Mantrina miyamda khusinnabiramgadaba projects in kari no haibadu mayam punna amuktang khangminasi. Everyone's attention on the screens, please. Reaping the benefit of the Indian government with the concerted efforts of the central and state government, Manipur is a stable, peaceful and developing state. The state is the focal point of the country's development and the state has been for the development and economic progress of the state. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicated to major structural projects worth rupees 1,808 crore to the people of Manipur. Foundation stone for 9 projects worth rupees 257 crore. The system of Taubal multi-purpose project has been completed with a cost of rupees 1 crore. Clean drink for people residing in Imphal. 65 crore consisting of artificial is all set to solve the water scarcity problem and provide water to residents of the project of augmentation of water supply scheme at Senna built at a cost of rupees 51 crore to provide daily drinking at least 3,500. The 154-meter long bridge has been constructed at a cost of rupees 79 crore is all ready to connect Manipur with the rest of India. To strengthen the health sector and step up the fight against the COVID-19 pandemic in the state, embedded cost has been rupees 37 crore at Kiamgai Mayai Lekai Imphal. Project 173 crore under the Imphal Smart City mission have been completed in the state. The project consists of the integrated command and on Imphal River and the Mall Road at Tangal Bazaar have been completed. The INA War Memorial Museum has been developed with a cost of rupees 30 crore at Moirang. The Indian national flag will be 165 feet flagpole, making it one of the tallest in the northeast region.
The Govindaji temple in Imphal has been refurbished and renovated at a cost of Rs 23 crore. Prime Minister Shri Narendra Modi will hand over 2,387 mobile towers with 4,056 BTS money, fast mobile connect internet for everyone. A new industrial training institute at cost of has been established. Training. The IPR building has been constructed at a cost of Rs 12 crore and it is equipped with an IT initiative for speedy examination. The various projects will be laid for the people in line with the vision of transportation. Mr. Shri Narendra laid a foundation stone for 5 national highway projects of 1,104 spending 100 provide and boosting hospital worth Rs 160 crore. Worth 31 crore on Shri Narendra Modi will lay the foundation stone for projects. These projects will consist of infrastructure for several colleges and hostels along with 50 health centers. The Prime Minister will lay the foundation stone for the biggest initiative in the state, Center Innovation and Trade. The project will be built at a cost of Rs and play a significant create opportunities. With the rich cultural heritage of Manipur, Honorable Prime Minister will lay the foundation stone for the Manipur Institute of Performing Arts at Gurugram, which will be built at Rs 242 crore. Equipped with modern amenities, and Narendra Modi will lay the foundation for the government residential quarters worth Rs 390 crore at New Chekon. A mega handloom cluster worth Rs 31 crore will be set up at Nongpo Kakching, the native village of Olympus silver medalist Mirabai Chenu. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will lay the foundation stone for Craft and Handloom Village worth Rs 5 crore in Moirang, which will harness the tourism potential of Loktak Lake. With an estimate, Narendra Modi will also lay the foundation for the rope at Ibudau Margin. This is a testimony to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's commitment to ensure the all-round development of Manipur. The Prime Minister has all his efforts to facilitate equal development of all the people living across the state. Tongan-tonganba Yaifra Thaurangi project sing hojik ikai Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji na Manipur gi miyamda khudol tambiragani. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के विकास में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. ऑनरेबल Thank you so much, sir, for doing the honor. अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक दिन अपने मनोभावों को व्यक्त करें. कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर ला गणेशन जी, मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भूपेंद्र यादव जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, मणिपुर सरकार में मंत्री विश्वजीत सिंह जी, लोसी दिखो जी, लेतपाओ होकीप जी, न्यूमाई जी, एस राजेंद्र सिंह जी, बुर्गजागिन बालते जी,
सत्यव्रत सिंह जी और लुखोई सिंह जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, अन्य प्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और मैं मणिपुर की महान धरती को, यहां के लोगों को, यहां की गौरवशाली संस्कृति को झुका करता हूं। साल की आना, आपसे मिलना, आप प्यार पाना, आशीर्वाद पाना, जीवन में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। आज जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 8-10 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह मणिपुर के लोगों ने भर दिया, रंग दिया। एक प्रकार से पूरी ह्यूमन वॉल, 8 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल, ये सत्कार, ये आपके कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मणिपुर वो है जहां राजा भाग्यचंद्र और पू खेतिंगथांग सिथलो जैसे वीरों ने जन्म लिया। देश के लोगों में आजादी का जो विश्वास यहां मोइरांग की धरती ने पैदा किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जहां नेताजी सुभाष जी की सेना ने पहली बार झंडा फहराया था, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा था, वो आज नए भारत के सपने पूरे करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। साथियों, आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं, जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी।
सना लाइबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इंफाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी। केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को मणिपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए बीरेन सिंह जी की सरकार ने दिन रात एक कर दिया है। आज मणिपुर के 60% घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। जल्द ही मणिपुर 100% सैचुरेशन के साथ हर घर जल का लक्ष्य भी हासिल करने वाला है। यही डबल इंजन की सरकार का फायदा है। यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है। साथियों, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनके साथ ही मैं आज मणिपुर के लोगों का फिर से धन्यवाद करूंगा। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये कैसे हुआ? ये आपके एक वोट के कारण हुआ। आपके एक वोट की शक्ति ने मणिपुर में वो काम करके दिखाया जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये आपके एक वोट की ही ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। और मुझे अभी ऐसे कुछ लाभार्थी किसानों से बातचीत करने का मौका मिला। उनका आत्मविश्वास, उनका उत्साह वाकई देखने जैसा था। ये सब आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 घरों को स्वीकृति, ये आपके एक वोट की ताकत का ही कमाल है। సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్
డయాబెటాలజీ స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234 9700971100. यहाँ के 4,25,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना आपके एक वोट की वजह से ही संभव हुआ है। आपके एक वोट ने 1.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाया है। आपका एक वोट ने 1,30,000 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाया है। आपके एक वोट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30,000 से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाया है। ये आपके एक वोट की ही शक्ति है कि कोरोना से मुकाबले के लिए यहां वैक्सीन की 30 लाख से अधिक डोज मुफ्त दी जा चुकी है। आज मणिपुर के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। मैं आप सभी मणिपुर वासियों को अनेक विध उपलब्धियों के लिए हृदयपूर्वक हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मणिपुर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। और आपने देखा है आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रमुख चेहरे
देश के अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। CIIT यहां के युवाओं में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट को और मजबूत करेगा। आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल गंभीर बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए मणिपुर के लोगों की केयर में मदद करेगा। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना और गोविंद जी मंदिर का जीर्णोद्धार मणिपुर के कल्चर को संरक्षण देंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की इसी धरती पर रानी गाइदिन्ल्यू ने विदेशियों को भारत की नारी शक्ति के दर्शन करवाए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। रानी गाइदिन्ल्यू म्यूजियम हमारे युवाओं को अतीत से भी जोड़ेगा और उन्हें प्रेरणा भी देगा। कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार में एक टापू है जो माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था। आजादी के 75 साल होने के बाद भी लोग उसे माउंट हैरियट ही कहते थे, लेकिन हमने उस माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखने का भी निर्णय किया। अब दुनिया का कोई भी टूरिस्ट अंडमान निकोबार जाएगा तो ये माउंट मणिपुर क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो जानने की कोशिश करेगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पहले जब एक्सपोर्ट की बात होती थी
तो देश के गिने चुने शहरों का ही नाम सामने आता था। लेकिन अब इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के जरिए मणिपुर भी व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। और कल देशवासियों ने खबर सुनी है, आजादी के बाद पहली बार कल देश ने $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया विक्रम स्थापित कर दिया। छोटे छोटे राज्य भी उसमें आगे आ रहे हैं। साथियों, पहले लोग पूर्वोत्तर आना चाहते थे, लेकिन यहां पहुंचेंगे कैसे, ये सोचकर ही रुक जाते थे। इससे यहां के पर्यटन को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब पूर्वोत्तर के शहर ही नहीं, बल्कि गांवों तक भी पहुंचना आसान हो रहा है। आज यहां बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज का काम भी आगे बढ़ रहा है और गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बन रही है। नेचुरल गैस पाइपलाइन जैसी जिन सुविधाओं को कुछ क्षेत्रों का विशेषाधिकार मान लिया था, वो भी अब पूर्वोत्तर तक पहुंच रही है। बढ़ती हुई ये सुविधाएं, बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी यहां पर टूरिज्म बढ़ाएगी, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। साथियों, मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों से लेकर ओलंपिक तक, रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग से लेकर वेट लिफ्टिंग तक मणिपुर ने एमसी मैरीकॉम, मीराबाई चनू, बमला देवी, लायसरम सरिता देवी, कैसे कैसे बड़े नाम है, ऐसे बड़े बड़े चैंपियंस दिए हैं। आपके पास ऐसे कितने ही होनहार हैं जिन्हें अगर सही गाइडेंस और जरूरी संसाधन मिले तो वो कमाल कर सकते हैं। यहां हमारी ये युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है। इसलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये यूनिवर्सिटी इन युवाओं को न केवल अनेक सपनों से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि खेल जगत में भारत को भी एक नई पहचान देगी। ये देश की नई स्पिरिट है, नया जोश है, जिसका नेतृत्व अब हमारे युवा बेटियां करेगी। साथियों, केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, उसका भी बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे
भारत के किसानों को मिले। भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है। 11,000 करोड़ रुपए के इस ऑयल पाम मिशन से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। यहां मणिपुर में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। ऑयल पाम लगाने के लिए, नई मिलें लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है। लंबा सफर तय करना है और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र पर चल रहा है। आज देश सबका प्रयास की भावना से एक साथ काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सब दूर काम कर रहा है। 21वीं सदी का ये दशक मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले की सरकारों ने बहुत समय गंवा दिया। अब हमें एक पल भी नहीं गंवाना है। हमें मणिपुर में स्थिरता भी रखनी है और मणिपुर को विकास की नई ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। और ये काम
डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है मणिपुर इसी तरह डबल इंजन की सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। एक बार फिर आज की अनेक विविध परियोजनाओं के लिए मणिपुर वासियों को, मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थागतचरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.